नमस्कार, मैं रंजन सिंह और आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट आवाज टाइम टू टाइम। कल बेरंगा में चलते हुए ऑटो के ऊपर एक पेड़ गिर जाने से अब्दुल रजाक एवं आमिनुल हक लश्कर नामक जो दो व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। आज उन दोनों व्यक्तियों की मृत शरीर को लेकर उनके परिजन तथा स्थानीय लोगों द्वारा सिलचर चमड़ा गोदाम के पॉइंट में सड़क जाम करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता रानू दत्त का यह रिपोर्ट। कल हुई दुर्घटना में दो व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनका इलाज सिलचर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में चल रहा है। आज विरोध प्रदर्शन करते हुए उपस्थित लोगों ने असम पुलिस मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। उपस्थितियों का कहना था कि 12 घंटे बीतने पर भी अब तक दोषियों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। साथ ही उनका ये भी मांग है कि मृतकों के परिवार वालों को 20 लाख रुपए तथा घायल व्यक्तियों के परिवार वालों को 10 लाख रुपए दे सरकार। প্রথম দাবি হলো যে আজকে যে দুজন লোক মারা গেছে এবং আরও যে 3-4 জন আহত, এই যারা মারা গেছে ওদেরকে 20 লাখ টাকা করে জনপ্রতি দিতে হবে। আর যারা আহত হয়েছে ওরাও প্রায় পঙ্গুর সমান, ওদেরকে কমপক্ষে 10 লাখ টাকা করে দিতে হবে। আর যাদের জন্য আজকে এই ঘটনা হয়েছে ওদের আমরা এই আজকে 1 ঘন্টা থেকে 8 ঘন্টার ভিতরে গ্রেপ্তার চাই এবং পুলিশের হেফাজতে রেখে ওদের উপরে যেন মোকদ্দমা দায়ের করা হয় সরকারের তরফ থেকে। আমরা কেন করব? আজকে রাস্তার উপরে গাছ কাটা হচ্ছে, সরকারি জমিতে গাছ কাটা হচ্ছে। সরকারের গাছ কে কাটলো, কে তাকে অধিকার দিল এই গাছ কাটার, এটারও সঙ্গে আমরা বিচার চাই। আজকে এই যে 2-3টা যে লোক মারা গেল, ওদের পরিবার যা কষ্ট হয়ে গেল, ওদের জিম্মা কে নেবে? সরকার কি নেবে? আজকে সরকারের পক্ষ থেকে কেউ আসেনি, আসামিরা গ্রেপ্তার হয়নি। আজকে যদি এইভাবে অরাজকতা যদি চলে তাহলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলব। এই অঞ্চল সমগ্র বরাক উপত্যকায় যেভাবে কালাই নিয়ে ওরা আন্দোলন দেখিয়েছে, আমরা ওদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমরা বৃহত্তর আন্দোলন করব। আজি যে 2জন মানুষ ঢুকাইছে আৰু 3জন মানুষ মেডিকেলত আছে, এই 2জন মানুষ হত্যা কৰিছে না নাই কওকচোন আপোনালোকে? এইটো হত্যা কৰিছে। তাৰ পাছত আমি জিলা প্ৰশাসনক কৈছোঁ আজি ৰাতিপুৱা 10টা বজাৰ আগতে আমাৰ অসামীখিনি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে, কিন্তু কাছাৰ পুলিচ প্ৰশাসন এতিয়ালৈকে এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই। উল্টা তেখেতে এই যে আসামীৰ বাৰীবিলাক বেৰিকেড দিছে, পুলিচ দিছে, কি কাৰণে দিছে এইটো ৰাইজে বুজি পাইছে। আৰু লগতে এতিয়া আমাৰ কথা হৈছে আমাৰ 7 ঘণ্টাৰ ভিতৰত এৰেষ্ট হ'ব লাগিব, পুলিচৰ হেফাজতত থাকি কিনি আমাৰ বিচাৰ ব্যৱস্থাটো কৰিব লাগে। আৰু লগতে আমাৰ 2জনৰ ফেমিলিক, একেজনৰ ফেমিলিত 20 লাখ টাকাকে গভৰ্ণমেণ্টে দিব লাগে। আৰু তাৰ ওপৰত আৰু এটা মানে কথা ক'ব লাগে, বেয়া লাগে, আমাৰ জিলা প্ৰশাসন, আমাৰ জিলাধিপতি বা কোনো এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ এতিয়ালৈকে এজন মানুহৰ ঘৰত খবৰ ল'বলৈ যাবলৈ তেখেতৰ দায়িত্ব বুলি ভাবা নাই। এইটো আমি বহুত বেয়া পাইছোঁ জিলা প্ৰশাসনক। লগতে আমাৰ PWD ফুল্লি ইনভলভ এইটোত। যোৱা নৱেম্বৰ মাহত কামত হাত দিব বুলি কৈছিলে এইটো ৰাস্তাত। মই যোৱাকালি এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ চক্ৰৱৰ্তী চালকৰ লগত লগ পাইছোঁ, তেখেতে এইটো ক্লিয়াৰেন্স দিব নোৱাৰে যে কেতিয়া কামখিনি হ'ব। আজি PWD ৰাস্তাটো বেয়া, যদি ৰাস্তাটো ভাল হ'লে হয় তেতিয়াহ'লে গাড়ী। बाद में मजिस्ट्रेट ध्रुव पाठक मौके पर पहुंचकर दोषियों को गिरफ्तार करने की लिखित रूप से आश्वासन देने पर विरोध प्रदर्शन को हटाया गया। कलाइन सड़क दुर्घटना में जो 5 विद्यार्थियों की मौके पर निधन हो गया था, उस विषय को लेकर आज कछार जिला उपायुक्त कार्यालय में एक सभा आयोजन किया गया। सभा में उपस्थित थी कछार जिला उपायुक्त कृति जल्ली, DIG दिलीप दे, कछार पुलिस अधीक्षक भंवर लाल मीणा, इसके साथ साथ कछार जिले के लगभग सभी विधायक, बदरपुर NC कॉलेज के छात्र, काटीगोड़ा का स्थानीय लोग तथा विभिन्न संगठन के लोग भी उपस्थित थे। जिला शासक का इस अवसर पर कहना था कि मृत लोगों को लेकर राजनीति करना ठीक नहीं है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ट्रिपर एवं पार्किंग व्यवस्था जो है उसे सर्कल ऑफिसर स्कूल एवं कॉलेज छुट्टी के समय पर नो एंट्री की व्यवस्था करवाएंगे। उन्होंने मुख्य सचिव के पास पत्र लिखी है कि जो 5 विद्यार्थी का निधन हुआ था उनके परिवार वालों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता रानू दत्त का यह रिपोर्ट। मेरे बहुत सारे मित्र दिख रहे हैं, मैं उन्हीं से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, हमारा टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है, अभी आपका फ्यूचर है।
आपके लिए देश बना रहे हैं हम, तो आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा, आपको लीडरशिप दिखाना पड़ेगा कि नहीं, सालों से हम यही करते आ रहे हैं, देश बदलना चाहिए, सोच बदलनी चाहिए। हाथापाई करने से किसी का भी बेनिफिट नहीं होता है। खुद की तरक्की कैसे करे, समाज में कैसे एक अच्छा आदमी बने ताकि समाज भी आगे बढ़ सके, जो मेरे ही तरक्की में फिर से हेल्प हो सके, उसी में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आगे बढ़िए। आप में से कई लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स लिखेंगे, आप सरकार में फिर एंटर करेंगे, क्या पता इसी में कोई डीसी आएंगे, कोई डीटीओ आएंगे, कोई एडीसी आएंगे। आप ही बताइएगा, हाथापाई करने वाले की फिर रिकॉर्ड बन जाती है, मोर इम्पोर्टेंटली उसकी आदत बन जाती है कि मैं दिमाग से नहीं सोचूंगा, मैं हाथ से सोचूंगा। সুরা আমরা কিছু ডিসিশন নিছি এবং খুব তাড়াতাড়ি আমরা অ্যালং উইথ আদার ডিপার্টমেন্টস আমরা এটা কার্যকরী করব। যারা পরিবারের যারা নিহত হয়েছেন পাঁচজন, তাদেরকে কি ক্ষতিপূরণের জন্য ডিসি ম্যাডাম সরকারকে লিখেছেন বা লিখবেন, তো সেই মতোই হবে সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী। কি কি ইনিশিয়েটিভ নেওয়া হয়েছে যাতে দুর্ঘটনা আগামীতে দুর্ঘটনা না ঘটে? ইনিশিয়েটিভ যেমন ন্যাশনাল হাইওয়েতে কিছু ব্যারিকেডিং, ডিভাইডার, রেডিয়াম লাইটিং, শোল্ডারিং, রাম্বল স্ট্রিপস, এগুলোর প্রভিশন রাখার ব্যবস্থা, র্যান্ডম চেকিং বাই ডিটিও অ্যান্ড পুলিশ, ভেহিকল চেকিং, ওভারলোডিং, লাইসেন্স, রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদি ইত্যাদি। যে অ্যারেস্ট করা হয়েছিল স্কুলের ছেলে, অ্যারেস্ট তো করা হয়নি এখন পর্যন্ত, আমি জানা মতে কোনো অ্যারেস্ট হয়নি। যেটা নিয়ে অবরোধ হয়েছিল, অবরোধ এখানে যেদিন অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল সেদিন অবরোধ হয়েছিল, কিন্তু তারপর কোনো অ্যারেস্ট হয়নি। ওকে আনা হয়েছিল থানাতে, কিন্তু অ্যারেস্ট হয়নি। এখন কি মানে ইয়ে নিয়েছেন আপনারা ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের তরফ থেকে বা প্রশাসনের তরফ থেকে? বললাম তো, রোড সেফটি মেজার্স নেওয়া হবে এবং র্যাকলেস ড্রাইভিং ইত্যাদি এগুলোর উপর চেক করা হবে। भाषा शहीद स्मारक समिति के कार्यकर्ताओं ने आज एक संवाददाता सम्मेलन करते हुए पूर्वोत्तर के कई राज्यों में बंगालियों के विरोध में रणनीति बनाए जाने की आरोप लगाया। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता अजीत दास का यह रिपोर्ट। आज भाषा शहीद स्मारक समिति के महासचिव विप्लव कुमार देव एक संवाददाता सम्मेलन करते हुए यह आरोप लगाया कि पूर्वोत्तर के कई राज्यों में परियोजनाबद्ध तरीके से बंगालियों पर अत्याचार चलाए जा रहे हैं। कुछ राज्यों में तो उन आक्रमणकारियों को सरकारें भी मदद पहुंचा रही है। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मीजो खासी संप्रदाय के जो लोग हैं उनको बंगालियों के विरोध में उकसाया भी जा रहा है। उत्तर पूर्वांचले विभिन्न राज्ये खूब सुपरिकल्पितभावे बांगालीদের উপর জাতিগত অত্যাচার চালানো হচ্ছে এবং কিছু কিছু রাজ্যে প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষভাবে রাজ্য সরকারও এসব কাজে মদত যোগাচ্ছে। বিনা কারণে নানা ধরনের প্রশ্নকে সামনে এনে বাঙালিদের বিরুদ্ধে খাসি নিজ জাতীয়তাবাদকে উস্কে দেওয়া হচ্ছে। সম্প্রতি মেঘালয়ের বাঙালিদের উপর অত্যাচার চরমে পৌঁছেছে। গত ফেব্রুয়ারি মাস থেকে আজ অবধি ইচামতি ও ভুলাগঞ্জ এলাকায় বাঙালিদের উপর মানসিক অত্যাচার একাংশ খাসি জনগণ চালিয়ে যাচ্ছেন এবং এতে মদত যোগাচ্ছে খাসি ছাত্র সংস্থা। শুধু তাই নয়, গত অক্টোবর মাসে শিলংয়ে মেঘালয়ে বসবাসকারী সব বাঙালিরাই বিদেশি, এভাবে এই প্রশ্ন তুলে সমস্ত শিলং শহরে পোস্টারিং হয়েছে এবং ফলে বাঙালিরা এক আতঙ্কের মধ্যে আজ অবধি দিন কাটাতে হচ্ছে। বরাক উপত্যকা থেকে উত্তর পূর্বাঞ্চলে অত্যন্ত স্বনামধন্য চিকিৎসালয় নিগ্রিমস, সেখানে অনেকেই উন্নত চিকিৎসার জন্য যেতে হয় এবং যান,
এবং বরাক উপত্যকার বাঙালিদের সেখানে যাওয়ার পর এই খাসি ছাত্র সংস্থা হোক বা তার মদতপুষ্ট আপনার অন্য কোনো সংগঠন বা ব্যক্তির দ্বারা বাঙালিরা অত্যাচারিত হয়ে থাকে। তো আজ ভাষা শহীদ স্মারক সমিতির পক্ষ থেকে মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমার এখানে এক স্মারকলিপি প্রেরণ করা হয়েছে এবং স্মারকলিপিতে স্পষ্ট বলা হয়েছে এভাবে যদি বাঙালিদের উপর অত্যাচার আর বেশি দিন চালিয়ে যাওয়া হয় তবে পরিস্থিতি নাগালের বাইরে চলে যাবে এবং যে কোনো সময় যে কোনো ধরনের বাজে ঘটনা ঘটতে পারে। অতএব রাজ্য সরকার সমস্ত জাতিবিদ্বেষী এই যে আন্দোলন, সেই আন্দোলনকে তারা যেন কড়া হস্তে দমন করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে খাসি ছাত্র সংস্থাকে আমরা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে চাই যে এ ধরনের ঘটনা ঘটলে পরে ভবিষ্যতে তাদেরকেও ফল করতে হবে। सिलचर बेंगल बॉयज क्लब के 60 वर्ष पूरे होने की खुशी पर क्लब की ओर से 5-a-साइड फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता रानू दत्त का ये रिपोर्ट। आज एक संवाददाता सम्मेलन करते हुए इस बात की जानकारी दिए क्लब के महासचिव शशि कुमार बनिक, खेल सचिव नंद दुलाल रॉय, सांस्कृतिक सचिव रविंद्रनाथ साहा, सह खेल सचिव सुजय बनिक सहित कई सदस्य। আমি বেঙ্গল বয়েজ ক্লাবের এক্সিকিউটিভ মেম্বার এবং স্পোর্টস ইনচার্জ দীপজ্যোতি রয় এবং যথাযথ আপনারা যারা আছেন জানেন যে বেঙ্গল বয়েজ ক্লাব এস্টাবলিশ হয় 1960 সনে এবং এই বছর আমরা 60 বছরে পা দিয়েছি, আমাদের ক্লাব পা দিয়েছে, তাই হীরক জয়ন্তী বছর আমরা পালন করছি। এবং আমার আগে আমাদের ক্লাবের জেনারেল সেক্রেটারি, স্পোর্টস ইনচার্জ এবং বড়রা যারা রয়েছেন তারা আপনাদের বলেছেন যে আমরা এই প্রোগ্রাম শুরু করি আমরা ভেটারেন্সের হাঁটা প্রতিযোগিতা দিয়ে এবং তারপর দুটো ফেজে আরও আমাদের খেলার অনুষ্ঠান হয়। কিন্তু করোনা চলাকালীন এবং করোনার যে সময় ছিল, প্যান্ডামিক সিচুয়েশনে আমরা দেখেছি জেলা ক্রীড়া সংস্থায় বিভিন্ন রকম সোশ্যাল ওয়ার্ক হয়েছে কিন্তু খেলাধুলা কিছু হয়নি। এই খেলাগুলোকে গতিমান করার জন্য ক্লাবের পক্ষ থেকে আমাদের এখন একটা ইনিশিয়েটিভ নেওয়া হয়েছে যেটা 5-a-সাইড ফুটবল গেম এবং সেই ফুটবল গেমে জেলা ক্রীড়া সংস্থার যে ইনস্ট্রাকশনের অনুযায়ী সুপার ডিভিশনের যে 6টি টিম আছে ইনক্লুডিং রানার্স আপ এবং ইন্ডিয়া ক্লাব, টাউন ক্লাব এবং গত বছর যারা চ্যাম্পিয়ন ছিলেন অনুভব ক্লাব এবং তার সাথে আরও 3টি ক্লাব মিলে এই সুপার ডিভিশনে যারা পার্টিসিপেন্ট রয়েছিল তাদের নিয়ে 5-a-সাইড গেমটা খেলা হবে। চিফ গেস্ট হইল আমরা বিধায়ক যে আছে দিলীপ কুমার পাল। আপনার যারা এবারে ম্যাচ চ্যাম্প করাইরা এটার আকর্ষণীয় কিটা থাকবে যেহেতু আপনার বর্ষপূর্তি উপলক্ষে তো আকর্ষণীয় তো প্রাইজ মানি দিয়া কররা বেস্ট ইয়ে থাকবো, বেস্ট কোরার, বেস্ট প্লেয়ার 2টা টুপি আর একটা থাকবো। আর আকর্ষণীয় খেলাটারে গতিময় করিয়া তোলার লিগেই 5-a-সাইডটা, কারণ এই যে ব্লক হয়ে গেছে না ফুটবল তো সিজনে এইবার আমরা ডিএসএ কোনো ফুটবল খেলা হয়েছে না, এটা ব্লক হয়ে গেছে পুরা, কারণ এই মহামারীর লিগে পুরা বন্ধ হয়ে গেছে। যে প্লেয়ারগুলা যে ক্লাবগুলায় কন্ট্যাক্ট করছিল প্লেয়ারগুলা এই কন্ট্যাক্ট তো শেষ হয়ে গেছে না, ওই প্লেয়ারগুলো তো আর খেলতে পারতেন না, আবার ফিস আবার ইয়ে করিয়া রেজিস্ট্রেশন করিয়া আবার অন্য ক্লাবে খেলতে গেল, ওই প্লেয়ারগুলো তো শেষ হয়ে গেছে। আবার নতুন वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद बाकी है और कई अहम खबरें। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर आने वाले हैं आपके घर में भी मेहमान तो जल्द से ले आए बिरला गोल्ड चाय, जिसके कन कन में है ताजगी व सुगंध और दाम औरों से है कई गुना कम। जी हाँ, जयश्री टी इंडस्ट्री कछार की प्रोडक्शन बिरला गोल्ड टी, पहले आजमाए फिर करें विश्वास। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आप सभी का स्वागत। गुरुवार को सिलचर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में कछार जिला प्रशासन के तत्वावधान में विश्व विकलांग दिवस मनाया गया।
गुरुवार को समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से सिलचर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थी कछार जिला उपायुक्त कृति जल्दी। सम्मानित अतिथि के रूप में उपस्थित थे कछार अतिरिक्त उपायुक्त राजीव राय, अतिरिक्त उपायुक्त सुमित सातवान एवं अतिरिक्त उपायुक्त ललिता रोंगपीपी, स्वास्थ्य सेवा के संयुक्त निदेशक डॉक्टर संदीप ज्योति दास, जिला समाज कल्याण अधिकारी स्वासती सोम, स्कूलों के निरीक्षक शामिना यास्मीन आरा रहमान, सिलचर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर बाबुल बेज बरुआ प्रमुख। इस अवसर पर सभी अतिथियों ने विकलांगों को घृणा करने के बजाय उनके विकास के लिए कार्य करने के लिए सभी से आग्रह जताई। किसी को 5%, किसी को 50%, ये असेसमेंट एक मेडिकल प्रैक्टिशनर, एक एक्सपर्ट ही कर पाता है। तो मेडिकल कॉलेज इन देयर बिग हार्टेडनेस हैज सेड कि महीने में 2 बार कैंप तो बैठाएंगे, बोर्ड बैठेगा, आपके एप्लीकेशंस लेके आप आइएगा, टाइम पे आ जाइएगा। एक बार छूट जाता है एटलीस्ट फिर से 15 दिन में फिर से बोर्ड बैठेगा। तो ये रिस्ट्रिक्शन जो इनिशियली हर्डल था वो भी अभी सॉल्व हो चुका है। आप रेगुलरली आते रहिएगा। वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट, जितना पेंडेंसी है उसको पहले क्लियर करने के लिए, और आगे भी इसको कैसे और स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं ये हम आगे लेके जाएंगे। एजुकेशन डिपार्टमेंट से आज अप्लायंसेस दिए जा रहे हैं। स्मार्ट टीवी एज एन आइडिया, क्योंकि आजकल कोविड के वर्ल्ड के बाद सीखना एक ट्रेडिशनल क्लासरूम मॉडल पे नहीं हो रहा है। हम यूट्यूब से सीखना शुरू किए हैं, हम जूम में सीखना शुरू किए हैं। तो स्मार्ट टीवी भी जो है वो एक दिव्यांग बच्चे को ही दिया जा रहा है, which will help him and aid him further in his learning capabilities. आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि दिव्यांगजन का जो पेपर वर्क है वो जितना जल्दी आप अप्लाई करके फिलअप करके खत्म कर सकते हैं उतना अच्छा होगा। आप देखे थे कोविड के बीच में जनधन योजना अकाउंट्स में बहुत पैसे घुसाए थे सरकार ने। थोड़े लोगों का छूट गया था क्योंकि बैंक अकाउंट ऑपरेशनल नहीं था, क्योंकि बहुत दिन से बैंक अकाउंट नहीं चल रहा था, तो जो पैसे घुसे वो बाउंस हो गया था। किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट ये हुआ है। वैसे ही आगे जो भी स्कीम अगर लॉन्च हो जाएगा, आपका पेपर वर्क रेडी है तो आपको हम मैक्सिमम बेनिफिट देने के लिए सक्सेसफुल हो सकते हैं। आज बोरखोला में जारुलतोला फेरी घाट से लेकर गंगापुर तक जाने वाला सड़क का शिलान्यास किए विधायक किशोर नाथ। 70 साल बाद किसी विधायक ने इस सड़क का शिलान्यास किया है। इलाके के लोगों में काफी खुशियां देखी गई। लोग नाचते गाते खुशियां मनाते विधायक किशोर नाथ को स्वागत। आइए देखते हैं कुछ झलकियां। মহাশয়কে আমি আহ্বান জানাচ্ছি বিধায়ক মহোদয়কে
সম্মান জানানোর জন্য। कोरोना वैक्सीन उपलब्ध होने पर पहले किसे किसे दिया जाएगा, आज इन सब बात खुलकर बताए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आइए सुनते हैं। अभी अन्य देशों की कई वैक्सीनों के नाम बाजार में हम सब सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी दुनिया की नजर कम कीमत वाली सबसे सुरक्षित वैक्सीन पर है और इस वजह से स्वाभाविक है पूरी दुनिया की नजर भारत पर भी। हमारे भारतीय मैन्युफैक्चरर्स, आईसीएमआर, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और ग्लोबल इंडस्ट्री के अन्य दिग्गजों के बहुत ही संपर्क में रह करके तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। आप एक तरह से मानकर चलिए कि सभी कमर कस के तैयार बैठे हैं। करीब करीब 8 ऐसी संभावित वैक्सीन है जो ट्रायल के अलग अलग चरण में और जिनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही होनी है। जैसा यहां चर्चा में भी बात आई, भारत की अपनी 3 अलग अलग वैक्सीन का ट्रायल अलग अलग चरणों में है। एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे हैं कि अब कोरोना की वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। जैसे ही वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलेगी, भारत में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। टीकाकरण के पहले चरण में किसे वैक्सीन लगेगी, इसे लेकर भी केंद्र सरकार राज्य सरकारों से मिले सुझावों के आधार पर काम कर रही है। इसमें प्राथमिकता कोरोना के मरीजों के इलाज में जुटे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं वैसे बुजुर्ग लोगों को दी जाएगी। साथियों, वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी केंद्र और राज्य सरकार की टीमें मिलकर के काम कर रही हैं। भारत में कोरोना वैक्सीन की रिसर्च से जुड़े दायित्व के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया था और वैक्सीन से जुड़े अभियान का दायित्व नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप को दिया गया है। इसमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारी हैं। नॉर्थ ईस्ट आवाज टाइम टू टाइम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर कुछ नई खबरों के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।